I can see, are you really ready, excited for the program? Am I audible? Yes, sir. So I'm Yes, sir. waiting for the response, all of you. Can you please type in the chat, ready? So yes, I can see, I can understand you all are ready. Not get any response. Yes, so many members are here. I can see Purnima hai, Neha hai, और भी लोग हैं, भावना है. I can see so many of the students, Kajal, Mansi, Suman, Vishakha, Murtaza, Ishika. Yes, I got the response from Bhavna. Okay. From where you are, Bhavna? Can you please reply in the chat? I just wanted to see more response in the chat. Okay. Am I audible? Yes. अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है? Okay. So kindly check your audio if I'm not audible, because I'm getting response that I am audible. Kindly check. So my dear friend, what is today's topic? Can you please type in the chat? किस विषय पे बात करने वाले हैं? What is the topic of the day? I just wanted to see more response from your side in the chat. Yes, what is the topic? Success and failure. Okay, very nice. Thank you for response. It's all about success and failure we are talking about. So my dear friend, before I start the program, these are some basic guidelines. As madam already informed you, switch on your camera. So can I see all the beautiful faces here? बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं. पूजा है, अनिकेश है, प्रिया है, सुहानी है. मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोगों के वीडियो ऑफ है. Yes. Can everybody switch on your video? I can see इशिका आपका वीडियो ऑन हो गया. थैंक यू. पूर्णिमा ऑन है, भावना ऑन है. ओके. सृष्टि ऑन है, नेहा ऑन है. बाकी का क्या? राज कपूर, वेरी नाइस. आपका भी वीडियो ऑन है. थैंक यू. So I requesting all of you, can you please switch on your camera, keep your audio mute throughout the session, keep your mobile in silent. Kindly check your mobile, keep it in silent, note down as maximum as possible, and actively पूरे session में आप सारे लोगों को बहुत ही actively participate करना है. So are you ready? Can I get the response in the chat? Are you ready? If you are ready, just type R so that I can understand you are ready for the program. Yes. How many response I can get? I'm waiting for your response. Yes. Okay, Neha, thank you for first response. Priya, second response. What about others? Sayyed, okay, thank you for your response that you are ready. Thank you, Suhani. Thank you so much. So my dear friend, we are moving forward. So थोड़ा एक छोटा short brief introduction देता हूँ. I am Shekhar Jain. I am from Raipur, Chhattisgarh, and we are also running DSIFT Raipur. तो यहाँ पर मैं लीड करता हूँ. एंड बाय प्रोफेशनल आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ एंड बिजनेस कोच. तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं अक्रॉस पैन इंडिया, और ट्रेनिंग हमारी थ्रू आउट द ईयर चलते रहती है. तो हर साल का ना हमने थीम बनाया. कैन यू सी व्हाट इज द थीम फॉर 2021? हालांकि हम साल के एंड में हैं, तो साल के एंड में भी अगर ये थीम को ही सिर्फ पकड़ लेना, ये थीम हमको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो व्हाट इज द थीम? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या लिखा हुआ है इन स्क्रीन? कैन यू प्लीज टाइप एंड शेयर? यस, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? आई वांट टू सी योर रिस्पॉन्स इन द चैट. यस, नो वन रिस्पॉन्सिव येट. अभी तक के किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है. क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में? क्या दिख रहा है? क्या देख पा रहे हैं? व्हाट इज द थीम? व्हाट इज द थीम? क्या दिख रहा है आपको? थीम है. थीम में मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं थीम में बात कर रहा हूं 2021 का हमारा एजेंडा, या 2021 का हमारा जो आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है, या समझ लीजिए 2021 को कैसे हमको आगे बढ़ाना है. उसका थीम है गो का मतलब है जी फॉर गाइड योर माइंड. अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, हर दिन, हर रोज, हर पल अपने माइंड को गाइड करना पड़ता है कि कहाँ मैं और बेटर कर सकता हूँ, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ. और जहां जहां आपको पता चलता है yes, after lockdown how we achieve success, absolutely, Rimjim will talk about that. इस पे भी हम बात करेंगे. सपना ने हैंड रेज किया है. सपना, would you like to speak something? आप कुछ बोलना चाह रही हैं?
सपना, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? ओके ओके, तो हम बात करेंगे लॉकडाउन के बाद हम कैसे लाइफ में सक्सेस में जाएं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थीम ये है कि आज के इस सेशन में जो हम बैठे हैं ना, हम अपने माइंड को गाइड करें, रेदर हम किसी और के बारे में सोचे, उससे अच्छा हम अपने बारे में सोचेंगे आज। तो आर यू रेडी टू टॉक, टू थिंक अबाउट योरसेल्फ? अपने Yes, बारे में sir. सोच यार कितने लोग? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। करना वही है, आज अपने बारे में सोचना है, थोड़ा ओपन अप होना है और अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना है। सो माय डियर फ्रेंड, आज जो हम बात करेंगे, हम दो चीजों पे बात करेंगे, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। So before I tell or share something from my side, let's start with activity। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। करना ये है, देखिए लिखा हुआ है राइट वन वर्ड ईच फॉर सक्सेस एंड फेलियर। पहले आप अपना नाम लिखिए चैट में, व्हाट इज योर नेम। लाइक पूर्णिमा अगर लिखेगी तो पूर्णिमा लिखेगी अपना नाम पूर्णिमा, और सक्सेस का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पैसा आना, आई थिंक इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आपको लगता है कि मनी इज अ साइन ऑफ सक्सेस, यू कैन राइट डाउन मनी। और आपको लगता है कि दूसरा कोई फेलियर, सैडनेस इज अ साइन ऑफ फेलियर, तो यू जस्ट राइट money on left side and sadness is on other side। like I just wanted to give you the example। जैसे मेरा नाम है शेखर सेन, मैंने लिखा, और मेरे को लगता है कि मैं अगर हैप्पी हूँ इसका मतलब मैं सक्सेस हूँ, और मैं अगर सैड हूँ इसका मतलब है कि मैं फेलियर हूँ। कैन यू सी दिस इन द चैट? कैन यू आल्सो प्लीज टाइप? मैं चाहूंगा आप सारे लोग अपना एक सिंगल वर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके ओके, मानसी बोलती है अचीवमेंट ऑफ लाइफ दैट इज सक्सेस, ओके, बट व्हाट इज द फेलियर? यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द पार्ट, है ना। बोलते हैं ना कि जहां सूरज उगा है तो सूरज ढलेगा भी, तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि लाइफ के ये दोनों पार्ट हैं, हम दोनों फेस करते हैं कहीं ना कहीं। तो कैन यू प्लीज टाइप योर नेम अलोंग विद सक्सेस एंड फेलियर ऑल टुगेदर, दोनों एक साथ। जैसे मैंने लिखा है, यू कैन सी द एग्जांपल इन दी टॉप विच आई हैव मेंशन इन द चैट। मैंने अपना नाम लिखा है शेखर, और मैंने लिखा है कि अगर आप हैप्पी हैं तो आप सक्सेस हैं, अगर आप सैड हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में फेल हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओके, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रिमझिम ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिप्लाई दिया है। रिमझिम बोलती है कि क्रिएटिविटी इज अ साइन ऑफ सक्सेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज अ साइन ऑफ फेलियर। वेरी गुड। साइमा आप क्या बोलते हैं? मानसी आप क्या बोलते हैं? सिर्फ अपना नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि क्या सक्सेस और फेलियर है अकॉर्डिंग टू यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई कैन सी मानसी ने लिखा है अचीवमेंट, इफ यू अचीव समथिंग इन लाइफ इज अ सक्सेस, और अगर आप कहीं डिप्रेस हैं इज अ साइन ऑफ फेलियर। वेरी नाइस, गुड मानसी, वेरी नाइस। आई नीड मोर रिस्पॉन्स, यस। और बाकी लोगों से भी ओके। तो साइमा बोलती है टू गिव अप इज अ फेलियर, वेरी नाइस। बट व्हाट इज अ सक्सेस साइमा? व्हाट इज अ सक्सेस साइमा? आपने एक फेलियर के बारे में बताया कि गिव अप करना फेलियर है, ओके। सक्सेस क्या है? ओके, वेरी नाइस। कंटिन्यू लर्निंग इज अ सक्सेस, ओके। सुहानी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। पेशेंस इज अ सक्सेस एंड एंगर इज अ फेलियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस सुहानी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई नीड मोर आउटपुट। मैं चाहता हूँ, शीतल ने नहीं रिप्लाई किया है, अभिषेक साहू ने नहीं रिप्लाई किया है, मैं देख पा रहा हूँ। रिमझिम इज वेरी एक्टिव, क्वाइट, आई लाइक द वेरी एक्टिव पर्सनालिटी। राज कपूर से हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, अभी तक के रिस्पॉन्स नहीं आया है। इशिका से हम एक्सपेक्ट करते हैं, सृष्टि है उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, सलोनी है, विशाखा है, सुमन है, काजल है, आई कैन सी सो मेनी पीपल, प्रिया है, सुहानी है, निष्ठा है, वेरी नाइस, विशाल है, संस्कृति है, सपना है। आई नीड मोर रिस्पॉन्स माय डियर फ्रेंड, कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, इम्पेशेंट इज फेलियर, वेरी नाइस। Empowerment is success, employment is a success, very nice Priya, and unemployed is a failure, absolutely yes, great 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 great। क्या बात है, आप सारे लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के आउटपुट मुझे देखते हुए। आई जस्ट वांटेड टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल इनपुट। अब जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया उनसे मैं चाहूंगा, जैसे आई थिंक सपना ने, पूजा ने, अनिकेश ने अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, और भी जो लोग हैं जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है, कैन यू प्लीज टेल मी? नेहा बोलती है सक्सेस मीन्स मोर पीसफुल एंड हैप्पी, वेरी नाइस, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अभी एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, हम बात कर रहे हैं सक्सेस और फेलियर से। अभी ये तो क्लियर होगा कि आप, अगर मैं आपको ये दो ऑप्शन दूं, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, तो कैन यू प्लीज टेल मी वेयर यू वांट टू बी? देयर आर टू ऑप्शन, सक्सेस एंड फेलियर।
आप सारे लोग किस एरिया में जाना पसंद करेंगे? कैन यू प्लीज टाइप वेर यू वांट टू मूव? देयर आर टू ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है, सक्सेस है और फेलियर है। किधर जाना पसंद करेंगे आप? ये जानना जरूरी ना है, इसके पहले हम सक्सेस और फेलियर को जाने। यस, एब्सोल्युटली, absolutely Priya, I can see iPhone, Neha, yes, absolutely success, obvious success, very good, very good. I'm getting good response, quite good response than previous, very nice. So one more question I just wanted to ask from all of you, why success? क्यों चाहिए success आप सबको? I'll tell you, I'll tell you how you can be successful in your life. But before moving with the how to be a successful person, it is very important कि आखिर success क्यों चाहिए? Can you please answer any of you? मजा आएगा, ओके okay. कैसे मजा आएगा कीर्ति जी, किस तरीके से मजा आएगा? मजा मीन्स व्हाट इज दिस मजा अकॉर्डिंग टू यू? ओके ओके, प्राउड आप फील करोगे, ओके to very nice Suhani, to make our parents proud because parents want to see you success, very good. मानसी बोलती without success life is nothing, absolutely yes, तो इसके लिए भी हमको success चाहिए, yes, quite good answer. Satisfaction, very nice, I appreciate Vedant, very wonderful answer you have given. Satisfaction कि लाइफ में कुछ एक सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज है ना, कि हमको मतलब मजा आना चाहिए, जो उन्होंने बात किया कि वैसे ही हमको कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, तो ऐसा कुछ सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसलिए हम लाइफ में सक्सेस के लिए आए हैं। सक्सेस मिलेगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा, एब्सोल्युटली यस। डू समथिंग इन लाइफ, हम लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, एब्सोल्युटली यस। सो दीज आर ऑल द रीजन। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज ना कुछ बेहतरीन आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ, बट बिफोर आई गिव सम फॉर्मूला, मैं आपको एक अच्छी चीज बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप में से कितने लोग ये बात को मानते हैं कि आप अच्छे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? If you believe, type yes. How many of you believe that आप अच्छे हैं? If अच्छे हैं तो yes. Okay, very nice. और yes believe. संस्कृति लिखती है yes I believe, very good. एक और चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो आप में से कितने लोग ये भी मानते हैं कि आप अगर चाहें तो आप और अच्छे बन सकते हैं? How many of you believe this? अगर आप बिलीव करते हैं तो टाइप डबल यस। आई नीड डबल यस, यस यस, कि अगर आप चाहें, मेरे चाहने से नहीं, आपके चाहने से, ओके ओके, यस यस, आई एम गेटिंग यस, वेरी नाइस, पूर्णिमा, विशाखा, नेहा, दिलीप, यस यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी जो है ना, मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल? कैन यू प्लीज गिव सम आंसर इन द चैट? क्या लगता है, व्हाट डू यू नीड? अगर मैं आपसे पूछूं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बतानी है ना, दो ही चीज चाहिए, टू थिंग्स, अगर दो चीजें चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए, वेदांत, वेरी नाइस, आप बोलते हो विल पावर, वेरी नाइस, एंड कमिटमेंट, वेरी नाइस, पेशेंस एंड टाइम, हार्ड वर्क, ओके, मेहनत, ओके 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 ओके, वेरी नाइस, सैक्रिफाइसेस, ओके, हार्ड वर्क, okay, smart work, struggle, good thinking, okay, very nice, concentration on goal, Sanskriti, very nice, believe in yourself, absolutely yes, Rimjim। मैं आपको ना आज के सेशन में मैं दो चीजें बताऊंगा, बहुत लंबा सेशन हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। दो चीजें चाहिए साथियों सक्सेस के लिए, और वो दो आसान सी चीजें हैं, ओनली टू थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। कैन यू प्लीज टेल मी क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन में? Can you please type in the chat what you are getting in screen? Very nice. Skill चाहिए, very nice. Okay. Will and skill, ये दो चीजें हैं जो चाहिए सक्सेस के लिए। एक है विल पावर, जो वेदांत ने भी बोला, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं होगी। देखिए, ये आज के ट्रेनिंग का प्रोग्राम का मैसेज बहुत सारे लोगों को गया है, बट राइट नाउ वी आर ओनली 30। बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए, आपको पता है क्या कारण है? कैन यू प्लीज आंसर? बाकी लोग नहीं आ पाए, यू नो व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? उनको भी या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या फिर उनके लिए ये मीटिंग जरूरी नहीं होगी। ओके, वेरी नाइस। इसमें अगर हम बात करें ना, दोनों ही स्थिति में द फर्स्ट थिंग, जो पहला पॉइंट है ना, इसमें लिखा है विल पावर, इच्छा शक्ति। उनके अंदर इच्छा ही नहीं है,
उनके अंदर ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि उनको जानना है कि विल क्या होता है, स्किल क्या होता है, उनको जानना ही नहीं। तो उसके sir. कारण से दे ऑल आर नॉट इन मीटिंग, वो मीटिंग में हमारे साथ नहीं है। कारण ये कि उनके पास विल पावर नहीं। दूसरा चीज होता है स्किल। आपके पास विल पावर तो है, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, जैसे कि आप सारे लोग इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज कर रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आईटी एंड एमटी? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट, कौन है, आप क्या कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग, व्हिच कोर्स यू आर डूइंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग और एनीथिंग एल्स? ओके, एफडी, वेरी नाइस। ओके, फैशन डिजाइनिंग, यस 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 यस। सो एक्चुअली जो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख रहे हो, आप इंस्टीट्यूट में आके आप डीएसआई एफडी आते हो और आप यहाँ पर आके जो कोर्स सीखते हो और यहाँ पर आके जो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हो, ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली स्किल्स। ये क्या है? ये आपका स्किल है जो आप यहाँ सीखने आते हो, ये आपका स्किल है जिसके लिए आप यहाँ आते हो। आप देख रहे होंगे मीटिंग में कुछ लोग आए, उन लोगों ने मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहा और वो चले गए, फाइनली वो रिमूव हो गए, है ना। अब देखिए, मीटिंग में वो आना चाह रहे थे, इसलिए आना चाह रहे थे क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति थी, विल पावर। उन्होंने ट्राई किया, लिंक प्रेस किया, वो मीटिंग में आ गए, विल पावर। लेकिन उन्होंने अपनी इमेज पॉजिटिव नहीं करके निगेटिव रखी, इसके कारण से उनको ग्रुप से बाहर कर दिया गया। क्या मिसिंग था उनके लाइफ में? विल पावर था, लेकिन क्या नहीं था? उनके अंदर स्किल नहीं था, कोई हुनर नहीं था, या उनको ये नहीं पता था कि कैसे हमको मीटिंग में बिहेव करना चाहिए, या कैसे हमको कोई चीज सीखना चाहिए, या क्या चीज हम लाइफ में सीखें, वो उनको नहीं पता था। आप जितने लोग फैशन डिजाइनर या इंटीरियर डिजाइनर या इवेंट मैनेजर या जो भी कोर्स कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आप स्किल सीख रहे हैं, यस और नो? आप सारे लोग स्किल सीख रहे हैं, हाँ या ना? जो फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं उनको पता है कि ड्रेस कैसे बनाया जाता है, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, कलर विल क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे उनको कॉन्सेप्ट पता है। यस, यू ऑल एग्री विद दिस, राइट? लेकिन बाजार में, मार्केट में हजारों ऐसे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे आपके आपके जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो मार्केट में हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट, दे डोंट हैव स्किल। सो यू ऑल आर लकी, यस और नो? आप सारे लोग लकी हैं क्योंकि आप डीएसआई एफडी के अंदर आके आप स्किल को इनहेंस कर रहे हैं, आप स्किल को सीख रहे हैं। यस, कितने लोगों को लगता है कि डीएसआई एफडी ज्वाइन करने के बाद आपका स्किल बढ़ा? हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज? अगर आपको लगता है तो टाइप मी, मी, आई रियलाइज मी, टाइप मी, क्योंकि पहले यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आई कैन सी सो मेनी आउटपुट। मैं देख रहा हूँ अभिषेक बोलता है मी, विशाखा बोलती है, मानसी बोलती है, पूर्णिमा बोलती है, प्रिया बोलती है, ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू आर सेइंग कि यस, डीएसआई एफडी में आने के बाद में आपने अपने इनहेंस किया, इसको, स्किल को इनहेंस किया, राइट? अब स्किल को इनहेंस कर रहे हो आप, डीएसआई एफडी में आप आके चीजें सीख रहे हो, आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो, डेली आ रहे हो, स्किल सीख रहे हो, दैट्स वंडरफुल, दैट्स सुपर। लेकिन अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो ना, तो इसमें स्किल्स के साथ आपके अंदर ना विल पावर होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि मेरे को रोज टाइम से क्लास जाना है, टाइम से पहले जाना है, टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया तो जो डेडलाइन है उससे पहले मेरे को कंप्लीट करना है, कहीं नया विजिट जाना है, जा रहे हैं अगर कॉलेज से कहीं विजिट ले जा रहे हैं तो वहां मेरे को जाना है, कुछ नई चीज सीखने मिल रही है तो मेरे को वहां पे जाके सीखना है, गूगल में कोई सर्च करना है तो मैं वहां पे जाके उस टॉपिक का और डिटेल मेरे को निकालना है। ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर विल पावर, राइट? You all are doing same course, you all are sitting in the same classroom, but my dear friend, आपके क्लास में से क्या सारे लोग क्लास नंबर 1 आने वाले हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक आने वाले हैं? क्या लगता है? एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, एक ही टीचर सारे स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि आप सारे लोग फर्स्ट, एक सबका एक रिजल्ट आने वाला है? नो, यस। अगर सबका एक रिजल्ट नहीं आने वाला है तो कितने लोगों को लगता है क्या कारण हो सकता है? जो बच्चा फर्स्ट आया और जो सेकंड आया, जो लास्ट आया, सबको एक ही स्किल की टीचिंग दी गई, यस और नो? एक ही स्किल सिखाया गया, आया ना? क्लास में एक जैसा पढ़ाया गया, एक ही स्किल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सारे लोग फर्स्ट नहीं आ पाए, उनमें से कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है। ये रिमझिम ने लिखा है, डिपेंड ऑन एफर्ट, एब्सोल्युटली यस। अब ये बताइए रिमझिम, एफर्ट कौन बच्चा ज्यादा करेगा? जिसका विल पावर स्ट्रांग होगा वो, या जिसका विल पावर कम होगा वो?
क्या लगता है कौन ज्यादा एफर्ट करेगा? यस, सो विल पावर जिसका स्ट्रांग होगा, यस, जिसका विल पावर स्ट्रांग होगा, एब्सोल्युटली संस्कृति, यस। बोलने का मतलब ये है आप सारे लोग डीएसआई एफडी में रोज क्लास अटेंड करके आप नई नई स्किल्स सीखते हो, लेकिन आप में से वो बच्चा आगे बढ़ेगा, आप में से वो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा जिसका विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होगा। कि क्लास का टाइम है, मान लीजिए 10 बजे, वो 9:30 आके बैठ गया, मेरे को काम करना है, टीचर ने असाइनमेंट दिया कि 20 तारीख को सबमिट करना है, वो बच्चा 15 तारीख को सबमिट कर दे रहा है। ठीक है, उसको कोई नया चीज सिखाया जा रहा है, कुछ प्रेशर दिया जा रहा है कि आज आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक बच्चा तो है वो परेशान हो जाता है कि और एक बच्चा बोलता है, एक स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को 10 और असाइनमेंट दीजिए मैडम, ये तो मैंने बना लिया, 10 और दीजिए। क्या लगता है हु इज गोइंग टू सक्सेस इन लाइफ? दो ही ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड। बार बार करने से सर हम ही लोग आगे बढ़ेंगे, और मतलब एक ही चीज को 2-3 बार जब आप कर लेते हो तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो मैं ये कर ही लूंगी। क्या बात है जी, सुपर आंसर, सुपर पार्टिसिपेशन माय डियर फ्रेंड। तो लाइफ में ना दो ही ऑप्शन है, एक है भाग लो। भाग लो का मतलब टीचर ने असाइनमेंट दिया, मतलब भाग जाओ भाई, भाग जाओ, मेरे को नहीं बनाना है। टीचर को एक्सक्यूजेस देना चालू करो, अरे मैडम मेरे से नहीं हो रहा है, कल लाइट गोल हो गया, कल ऐसा हो गया, परसों में वहां चली गई थी तो ये हो गया था, वो हो गया। दिस इज वन ऑप्शन। ये बंदा कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एक और होता है भाग लो, यू नो दिस इज भाग लो, ये भी होता है, ये भी भाग लो लिखा हुआ है, बट इस भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट। टीचर ने मेरे को कितना भी वर्कलोड दिया हो, कितना भी प्रेशर दिया हो, कितना भी चैलेंज दिया हो, आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ कि कैसे भी करके आज पूरी रात जगनी पड़े, मैं रात जगूंगी और मैं ये असाइनमेंट को कंप्लीट करूंगी। दैट इज द विल पावर। यस सर। ये लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो आप जितने लोग यहाँ पर है, आई जस्ट वांटेड टू गेट, अभी तक की पढ़ाई में कैन यू प्लीज रैंक यूर सेल्फ? आप अपने आप को रैंकिंग देना चाहोगे क्या? कैन यू प्लीज टाइप की विल पावर में मेरे को लगता है सर आउट ऑफ 10 में 6 में हूँ, 4 में हूँ, और मेरे को लगता है हाँ स्किल्स कुछ पूछा जाता है जैसे ऑटो कैड या कैड पूछा जाता है या स्पीचिंग पूछा जाता है तो शायद मैं अच्छा कर लेती हूँ। लाइक कैन यू प्लीज रैंक योर सेल्फ एवरीवन? कैन यू प्लीज, मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको, देखिए आप, यू कैन सी इन दी चैट। विल में मैंने लिख दिया है 6 और स्किल में लिख दिया है 8। रिमझिम बोलती है कि सर मेरा विल पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 10। वेरी नाइस। एंड आई कैन सी रिमझिम योर कमिटमेंट कि आप यहाँ बैठे हुए हो। मैडम ने आपको, तृप्ति मैडम ने बोला कि सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, और उनमें से कुछ लोगों में से आप हैं जिसका कैमरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक के ऑन है, एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग। सो इट्स आई कैन सी बाय द एक्शन, जिसको बोलते हैं ना कि लर्निंग बाय एक्शन, और एक्शन बोलना बड़ा आसान है, एक्शन से मैं यहाँ क्लियरली देख सकता हूँ कि मैडम ने इंस्ट्रक्शन सबको दिया था। राइट, मानसी बोल रही है सर एक्चुअली आई एम ट्रेवलिंग टू उज्जैन। ओके, नो प्रॉब्लम, देन आल्सो इन ट्रैवलिंग यू कैन स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू से, मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला कि वीडियो ऑन होना चाहिए। अब जिनका वीडियो ऑन है उनका विल पावर एब्सोल्युटली ऑन है, उनका विल पावर ऑन है, उनका विल पावर हाई है। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो अपने आप को बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्साइटमेंट की कमी है। टीचर ने बोल दिया है कि बेटा सेशन अटेंड करना है इसलिए हम आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हो सकता है हमारी इच्छा शक्ति कम हो। आप अपने आप को रैंक करिए, नोबडी इज गोइंग टू गाइड यू और हेल्प यू, इट्स योर लाइफ माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपको ही अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सैयद संजीदा बोलती है कि सर मेरा विल पावर 7 है और स्किल 9 है, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं ना संजीदा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना विल पावर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं मेरे को तो सक्सेस होना ही है, ये काम मैं करूंगी। टीचर ने असाइनमेंट दिया तो मैं इस बहाने को लेके नहीं जाऊंगी कि कैसे नहीं बना, मैं तो ये चीज लेके जाऊंगी कि मैडम आपने बोला था 10 तारीख को, मैंने तो 8 तारीख को ही कंप्लीट कर लिया। तो यू कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी माय डियर फ्रेंड। आप अपनी पहचान खुद बना सकते हो, आप अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हो। जब आप टीचर को असाइनमेंट टाइम पे नहीं सबमिट करते हो ना, तो टीचर के नजर में कहीं ना कहीं आप अपनी रैंकिंग को डाउन करते हो। यस और नो? यस सर। और फिर टीचर भी सपोर्ट नहीं करते ऐसे। हाँ हाँ, मतलब आपने अपना इमेज डाउन कर दिया ना। टीचर के लिए तो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन
एट द एंड ऑफ द ईयर टीचर से अगर मैं रिपोर्ट कार्ड मांगू कि मैडम कौन अच्छा है कौन बेकार है, वो बता सकती है? यस और नो? कैसे Yes, बता sir. सकती है? बिकॉज उस साल भर के ट्रांजिशन के अंदर आपने अपनी इमेज कुछ ना कुछ बनाई है। लाइफ में ना सारे लोग आपको रन देते हैं, जब आप अच्छा काम करते हो लोग आपको रन देते हैं कि नहीं यार ये तो बढ़िया बंदी है। किसी को सोचो, अगर अगर मैं बोलूं रिमझिम आपको अगर कोई असाइनमेंट सबमिट करने का मैडम ने डेडलाइन दिया 10 तारीख और अगर आप 8 तारीख को सबमिट करते हो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ इमेज यू विल कैरी इन योर टीचर्स माइंड? यस सर, मतलब फिर वो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि क्लास में भी बोला जाएगा कि अभी ये तो कर ही देगी, बाकी बच्चों पे कंसंट्रेट करना है। यस, लेकिन तो उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये इमेज किसने बनाया है? हम खुद ही बनाते हैं। रिमझिम ने बनाया अपने परफॉर्मेंस से। उसने ये लोगों को राइट दिया, लोगों को बोलने का मौका दिया कि आप सारे लोग बोल सकते हो कि मैं एकदम पंक्चुअल स्टूडेंट हूँ, मैं कमिटेड बच्ची हूँ, मेरा विल पावर स्ट्रांग है। अब सोचो रिमझिम आपको कोई असाइनमेंट दिया, 10 तारीख का डेडलाइन था, आपने 12 तारीख को सबमिट किया, क्या इमेज आपकी बन रही है? बहुत यस सर, क्या इमेज बनेगी? बेकार भी इमेज बनेगी और फिर वो नेक्स्ट टाइम से परफॉर्मेंस खुद का ही डिग्रेड होगा, क्योंकि आगे भी हमें और भी काम करना होगा, उसमें भी डिले होगा, कंटिन्यूअसली हम पीछे जाते जाएंगे। एब्सोल्युटली यस, आई एग्री विथ यू रिमझिम। और इसमें देखिए क्या हुआ, रिमझिम ने लोगों को राइट दिया कि आप मेरे बारे में बेकार बोल सकते हो, या आप मेरे को बोल सकते हो कि ये बंदा जो है ये पंक्चुअल नहीं है, ये बंदा कमिटेड नहीं है। सो हु इज गिविंग राइट टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ टू पीपल? कौन दे रहा है अधिकार लोगों को आपके बारे में? सपना को अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? सपना ने ऐसा कुछ काम किया होगा जिससे सपना को अच्छा बोला जा रहा है। नेहा ने कुछ अच्छा किया होगा, मानसी ने अच्छा किया होगा। अब देखिए मानसी, आई थिंक यू आर इन ट्रैवलिंग, आई थिंक योर मैसेज वाज दैट, शायद आपका ही मैसेज था। अभी देखिए मैंने इनको कमेंट किया कि तो भी तो आप वीडियो ऑन कर सकते हो। नाउ यू कैन सी शी इज ट्रैवलिंग एज वेल एज उसका वीडियो भी ऑन हो गया। सुपर। तो एक अच्छा इमेज अब मेरी नजर में मानसी के लिए एक मेरी आइडेंटिटी क्या होगी कि नहीं यार ये लड़की सिंसियर है और ट्रैवलिंग में होने के बाद भी इसने कैमरा ऑन कर लिया है। कैन वी क्लैप फॉर दी मानसी फॉर टेकिंग द इमीडिएट एक्शन? सो दिस इज अ सक्सेस। यही वो चीज है, मैं आपसे यही शेयर करना चाह रहा हूं कि विल पावर जिस बंदे का स्ट्रांग होगा वो लाइफ में खूब आगे बढ़ेगा। विल का मतलब होता है इच्छा होना। इच्छा बनाइए। आप क्लास जब आते हो ना रोज, तो टीचर जब असाइनमेंट देती है तो उस असाइनमेंट को बनाने का इच्छा बनाइए। इच्छा नहीं बनाएंगे, डिग्री डिप्लोमा तो कंप्लीट हो जाएगा, लाइफ में आप फेलियर हो जाओगे, क्योंकि वो काम आपको करते आएगा नहीं, क्योंकि आपने वो असाइनमेंट सक्सेसफुली शिद्दत से वो असाइनमेंट को आपने नहीं बनाया। इसीलिए विल को क्या बोला गया कि कमजोर केवल इच्छा करते हैं। कमजोर लोग केवल इच्छा करते हैं, जबकि महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति मतलब वो इच्छा को कंप्लीट करने का शक्ति, पावर, हौसला, जुनून होता है। और वो लोग जो बोलते हैं ना वो करके दिखा भी देते हैं। So we all have to check ourselves. Can you keep your finger like this, all of you? Can you please keep your finger on head? ऐसे 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 लगाइए एक बार। हम ना इधर उधर टेस्ट करते हैं, दोस्तों को, रिलेटिव को, फ्रेंड को, इंस्टीट्यूट को, कि मैडम आज तो ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ। हम उन पे बहुत जल्दी कमेंट करते हैं। हमको ना रोज ऐसा एक टेस्टर लगाना चाहिए अपनी खोपड़ी में और अपने आप को पूछना चाहिए, सपना ये बता तेरा विल पावर कितना है, सपना ये बता तेरा स्किल कितना है, रिमझिम ये बता तेरा स्किल कितना है। जब हम अपने ऊपर टेस्टर लगाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, यू विल चेक, आप देखोगे आपके अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। आप देखोगे कहां आप कमजोर हो और कहां आप बेटर कर सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है दैट इज अ स्किल। स्किल का मतलब कौशल और हुनर। तो सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में है DSIFT में जहां पर हम स्किल सिखाते हैं। मैं हमारे यहाँ के रायपुर के हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि एक MBA BCom करने के बाद, एक MBA करने के बाद भी आदमी को जॉब मिले, आइडेंटिटी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक DSIFT से या किसी भी स्किल इंस्टीट्यूट से आप साल भर का एक डिप्लोमा भी करते हो ना फैशन डिजाइनिंग में, आप साल भर बाद आप लोगों को प्राउडली बोल सकते हो कि यस आई एम अ फैशन डिजाइनर। यस और नो? बिकॉज यू हैव अ स्किल। और जिसके पास स्किल है ना उसके लिए बाजार में बहुत काम है। MBA वाले के लिए काम हो नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक फैशन डिजाइनर के लिए काम जरूर होगा, इंटीरियर डिजाइनर के लिए काम जरूर होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज जानती हैं, भावना जी, पूर्णिमा जी, मानसी जी, आप सारे लोग, नेहा जी,
आप सारे लोग ऐसा चीज जानते हैं जो शायद एक कॉमन मैन नहीं जानता है। एग्री करते हैं आप सारे लोग? आर यू एग्री विथ मी? तो पहले तो ना अपने आप को ऐसे हाथ उठाइए और एक बार क्लैप करिए ऐसे, कैन यू डू दिस फॉर मी? ऐसे ऐसे रेज योर हैंड, ऐसे 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 हाथ उठाना है रिमी, और ऐसे 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 रिमझिम, और ऐसे पीछे पीठ थपथपाना है। डोंट आस्क एनीवन कि कोई आएगा और आपको अप्रिशिएट करेगा। डोंट वेट फॉर समवन कि कोई आएगा और आपको पीठ थपथपाएगा। आपने कुछ अच्छा काम किया ना लाइफ में, इट्स योर हैंड, रेज योर हैंड एंड डू सम क्या अप्रिशिएशन फॉर योर ओन। डोंट वेट कि कोई आएगा और पीठ थपथपाएगा। आप खुद अप्रिशिएट करिए अपने आप को कि यस, टुडे आई अटेंडेड अ वंडरफुल सेशन, यस आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी पर्सन दैट विद इन अ ईयर आई एम गोइंग टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, विद इन अ ईयर आई एम गोइंग टू बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर। आप प्राउडली अपने नाम के साथ लिख सकते हो, आई एम अ फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। सोचिए कितना बड़ा टैग लाइन आपको इस DSIFT से मिलने वाला है। अब ये सारे को मिलेगा, लेकिन सक्सेस कौन होगा? जिसके पास विल पावर होगा। इसीलिए बोला गया हम अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ते हैं, किसी की दया से नहीं। यस और नो? लाइफ में सक्सेस, विराट कोहली अगर क्रिकेट टीम को लीड कर रहा है, क्या लगता है किसी की दया से या योग्यता से? व्हाट इज दिस? कैपेबिलिटी ना। कैपेबल नहीं होगा तो उसको क्यों बुलाया जाएगा? ठीक है, मैडम ने अगर मेरे को आज इस फॉर्म बोला कि सर आप आइए और कुछ एक बढ़िया सा गेस्ट लेक्चर या एक मोटिवेशनल टॉक दीजिए, किस लिए? योग्यता से कि दया से? तो आपका लाइफ में जो आपकी आइडेंटिटी बनती है ना, दैट इज योर कैपेबिलिटी। आप पहचाने जाते हो अपने काम से, आप पहचाने जाते हो आपकी योग्यता से, आप अपने स्किल से। तो मैं आज जितने लोग हैं उन सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ना हम ऑनलाइन ऑनलाइन होके बस मोबाइल के और कंफर्ट जोन के आदी हो गए, हाँ या ना? यस सर। तो अब जब टीचर कोई असाइनमेंट देती है, सर कोई असाइनमेंट देते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बना के दीजिए, तो हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। अब सोचिए लेजी हुए, नुकसान किसका हो रहा है? लॉस किसका हो रहा है? असाइनमेंट हम टाइम से नहीं बना के दे रहे हैं, प्रॉब्लम किसका हो रहा है? कैन यू आंसर? आर यू? खुद का। वेरी गुड, संजीदा बोलती है खुद का। तो ऐसे केस में यू आर गोइंग टू बी सक्सेस और फेल। कहां जाने वाले हो आप? किधर जाओगे? इन विच डायरेक्शन? सक्सेस और फेल। कोई काम दिया गया, उस काम को अगर आप टाइम से पूरा नहीं कर रहे, नेहा ने आंसर किया फेलियर। एब्सोल्युटली यस। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो हम सबको डेवलप करना है वो है हमारा विल पावर। एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, इसको बोलते हैं विल स्किल मैट्रिक्स। अब देखिए जिस बंदे का विल पावर लो है और स्किल लो है, किधर जा रहा है? देखिए ये बंदा लो परफॉर्मर होता है, ये लाइफ में कभी भी ना बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पाता है। क्यों? ना तो इसके पास हुनर है, ना तो कोई स्किल आता है, और ना इसके पास कोई विल पावर है। ये लोग एकदम फेलियर कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, और जितने लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई ना, जैसे खेल की जगत में सचिन तेंदुलकर, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में बात करूं तो लता मंगेशकर, सोनू निगम, अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करूं अक्षय कुमार, अगर मैं लीडर के पोजीशन में बात करूं नरेंद्र मोदी, अगर ये सारे लोगों को अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं ना, आप देखिए इनके अंदर स्किल है कि नहीं है कि नहीं है? लता मंगेशकर अगर एक अच्छी सिंगर है तो उसके पास स्किल है, उसको पता है कि गाना कैसे गाया जाता है, और स्किल के साथ साथ उनके पास विल पावर भी हाई है, इच्छा शक्ति भी ज्यादा है, तब जाके उस मुकाम पे पहुंचे हैं माय डियर फ्रेंड। सो इफ यू वांट टू बिकम द आउटस्टैंडिंग फैशन डिजाइनर ऑफ इंडिया, और अगर आप चाहते हो कि इंदौर या बॉम्बे की मैं सबसे बेस्ट फैशन डिजाइनर बनूं, तो आपको ना अपना विल पावर को बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए जिनका विल पावर हाई है, जिनका विल पावर के साथ साथ स्किल हाई है, आप देखोगे ये वो लोग हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में, और ये वो लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस में जाते हैं क्योंकि इनका विल पावर हाई है और इनका स्किल भी हाई है। और देखिए एक बहुत अच्छी बात मोहम्मद अली बोलते हैं, द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? देखिए विल हाई होगा तो स्किल भी आ जाएगा, हाँ या ना? विल हाई है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है,
जैसे आपकी इच्छा शक्ति थी कि मेरे को आज सेशन में आना है, तो अब वो ट्रेवलिंग कर रही है मानसी, उसके बाद भी उसका मन हो रहा है कि मेरे को सेशन में मैं अटेंड करूं, राइट? किस कारण से? विल पावर। तो विल पावर जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो कैन यू प्लीज, वी विल डू वन स्मॉल एक्टिविटी, कैन यू प्लीज टेल मी कि आप अपना कोई विल और स्किल शेयर करेंगे क्या, कि किस चीज में? मैं अगर रिमझिम से, पूर्णिमा से, नेहा से, भावना से, मानसी से, अभिषेक से, देखिए उनका नाम मैं ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगा जिनका वीडियो ऑन होगा, क्योंकि वो स्क्रीन में मेरे को सबसे पहले नंबर में दिख रहा है। जैसे सपना है, रिमझिम है, विशाखा, अभिषेक है, नेहा है, पूर्णिमा है, भावना है, ये सारे लोग मेरे को स्क्रीन में दिख रहे हैं, और बाकी लोग भी जितने हैं। कैन यू प्लीज टाइप योर विल एंड स्किल? किस चीज में आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है? वो कौन सा स्किल है जो आप बोल सकते हो कि जिसमें आप बहुत अच्छा करते हो? जैसे हो सकता है सम ऑफ यू आर वेरी गुड इन फाइन आर्ट, मे बी सम ऑफ यू आर गुड इन डांसिंग, मे बी सम ऑफ यू आर गुड इन singing, or maybe it may be related to any subject. Can you please tell me your will and skill? Your skill? Painting, okay, very nice. Teaching, very good. ओके, सुहानी बोलती है पेंटिंग में सर एकदम मेरा विल पावर हाई रहता है, इट्स अ स्किल। सो व्हाट यू कैन डू, सुहानी, यू कैन स्टार्ट अ पेंटिंग क्लास, मे बी यू आर बिकम अ गुड, एक अच्छे आप पेंटिंग के आप क्लास हो जाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, मानसी कर पाएंगी। इवन यू कैन स्टार्ट स्टिचिंग का, जिसने लिखा है स्टिचिंग क्लास स्टार्ट कर सकते हो, स्टिचिंग पे लेक्चर लेना चालू कर सकते हो, स्टिचिंग पे ब्लॉग लिखना चालू कर सकते हो, स्टिचिंग पे यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हो। ओके, नेहा, आप कौन सा गेम प्ले करते हो आप? आई एम गुड इन प्लेइंग गेम्स, विच गेम? रिमझिम, लिसनिंग एंड टॉकिंग, so you can become a good speaker। रिमझिम, आप कोई एक टॉपिक लीजिए, जैसे फैशन डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, so you can take a small short session, you can start on talking on particular topic, जैसे कभी कलर व्हील पे सेशन ले लिया, कभी कैट के ऊपर सेशन ले लिया, you can take so many session। रिंकी बोलती है आर्ट एंड क्राफ्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर आपके अंदर ये स्किल है, आप में से कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ किस चीज में, मैं बहुत अच्छी हूँ फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग में, तो यू कैन मेक पेंटिंग एज अ करियर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन पेंटिंग। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? स्किल तो है, कहाँ मिसिंग है? विल पावर हमारा मिसिंग है ना? किसी ने लिखा है स्टिचिंग में अच्छा करती हूँ, लेकिन अभी तक क्या आपने स्टिचिंग में कुछ किया क्या, कुछ अचीवमेंट हासिल किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अगर हम उसके डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि शायद विल पावर मिसिंग है। सो सक्सेस होने के लिए स्किल होना जरूरी है, लेकिन स्किल से साथ साथ आपका विल पावर होना भी जरूरी है। तो आइए, वेलकम टू सक्सेस, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ सक्सेस की जर्नी में। और इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आज के सेशन का ना एक बेहतरीन सा फॉर्मूला देता हूँ, और मेरा ये मानना है कि सुधार होगा तो ही विकास होगा। यस और नो? मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप अच्छे हैं, यू ऑल आर डूइंग गुड जॉब, यू ऑल आर लकी बिकॉज यू आर डूइंग स्किल बेस्ड प्रोग्राम। तो वैसे ही आप बाकी लोगों से, भीड़ से अलग हो, आपकी एक अलग पहचान है, लेकिन उस अलग पहचान को और ज्यादा अच्छा पहचान अगर आप बनाना चाहते हो तो अपना विल पावर को बढ़ाना होगा, स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप स्टिचिंग करती हैं, लेकिन क्या आपकी स्टिचिंग इस लेवल पे है कि इंडिया के बेस्ट फैशन डिजाइनर आपसे स्टिच कराएं? क्या आपका पेंटिंग इस लेवल पे है कि लोग आपकी पेंटिंग को मतलब बोली लगा के खरीदें? मतलब अगेन इट इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ नॉलेज, कि क्या उस गहराई में आपका स्किल है? नहीं है तो उस गहराई में हम सारे लोगों को अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, राइट? सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, विल गो विद द क्वेश्चन आंसर राउंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट। जितनी अभी हमने बात की, आप में से किसी को लगता है कि सर मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ लेकिन ऐसा हो जाता है, आपके मन के किसी के अगर कोई प्रश्न है, तो फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। यस, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। लगभग हाफ ऑफ द सेशन हम पहुंच चुके हैं, और कुछ एक अच्छी टेक्निक मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले रिमझिम, सपना, विशाखा, अभिषेक, नेहा, पूर्णिमा, भावना, मानसी एंड रिंकी जी भी अब वीडियो में आ गई है, मोस्ट वेलकम मैडम। राज कपूर और जितने लोग हैं, सृष्टि और संजीदा जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन वो वीडियो उनका ऑन नहीं है। सुमन है, काजल है, सलोनी है, पूजा है, अनिकेश है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर हम कर तो कुछ भी पाते हैं, बाकी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में कि हाँ मैं इतना कर लूंगी। कर तो बहुत कुछ लेते हैं सर स्टिचिंग में, बाकी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप के अंदर।
ओके, बहुत कुछ में कोई एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छा करते हो मैडम आप? स्टिचिंग सर बहुत अच्छी है, जो कोई सामने वाला बता दे एज इट इज बना देते हैं सर, बाकी वेरी कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद से बना रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, अब सोचिए, मान लीजिए कि आप स्टिचिंग में बहुत अच्छी हैं, ठीक है? अब स्टिचिंग में क्या आपने अपने खुद के लिए ड्रेस डिजाइन किया? यस सर। ओके, कभी उस ड्रेस को डिजाइन करके कभी आप किसी पार्टी में या कहीं पर कहीं किसी ओकेशन में गए हैं आप? यस सर, और बहुत तारीफें भी सुनी है। वेरी नाइस। अब देखिए कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे आप ड्रेस को पहन के गए, लोगों ने आपकी तारीफ की, तो अब आपको क्या करना है, आपको ना एक पॉजिटिव अफर्मेशन या अपने आप से एक पॉजिटिव टॉक करना है कि यार मैं तो बहुत अच्छा ड्रेस बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब बाजार में जाती हूँ तो मेरे ड्रेस को लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा आपको बोलना चालू करना पड़ेगा। क्या ये कर सकते हैं आप? यस सर। कर सकते हैं। जी सर। अब मैंने आज एक अच्छी चीज बताई कि लोगों से तारीफ की उम्मीद मत करो, खुद अपना पीठ थपथपा लो, वेल डन, कि वाह यार तूने बढ़िया ड्रेस बनाया, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप अपने आप को ऐसा दिन भर में एक दो बार शाबाशी दे सकते हैं? यस सर। अब सोचिए, आप रोज ये बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छा ड्रेस बनाती हूँ, मेरे से बहुत अच्छा ड्रेस बनता है, वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा ड्रेस बनाया है, मामी ने भी तारीफ किया, नानी ने भी तारीफ किया, बुआ ने भी तारीफ किया, वेरी गुड। आप अपने आप को ऐसा बोल, ऐसा बोलने से क्या लगता है, आपका मन और ड्रेस बनाने का करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना सर। Yes, this is the way you can build the confidence. दुनिया में आपके बारे में 100 लोग हो सकता है आपकी गलतियां निकालें, राइट? लेकिन 4 लोग हैं जो आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, राइट? अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, वो 100 को भूल जाइए, सिर्फ उन 4 को याद रखिए जो 4 आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। यस सर। कैन वी डू दिस? यस सर। बस ये करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैडम। जब आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो गए, अब आप दूसरे सब्जेक्ट में कहीं आपको लगता है कि मैं डाउन हूं, उसका कुछ वर्क स्टार्ट करिए, उसमें कुछ करके दिखाइए। वो करके दिखाने के बाद उसमें फिर अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि नहीं, ये तो मैं टफ समझती थी, लेकिन ये मेरे से बन रहा है, मैं ये बना सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब इस तरीके का बात हम अपने आप से करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, आप देखोगे ऑटोमेटिकली, स्लोली बाय स्लोली यू विल रियलाइज आपकी जो विल पावर है ना वो बढ़ेगी। आपको रात को भी ना सपने में ये आएगा कि अरे एक काम करती हूँ, कल ना मैं ये वाला ड्रेस बनाऊंगी। समझ रहे हो आप? मतलब दिन भर आपके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी अच्छी चीजें चलेंगी कि कल मैं ये करती हूँ, परसों मैं ये करती हूँ, अब ना मैं वो भी बना लूंगी। अच्छा, बाजार में भी आप घूम रहे होगे ना, तो लोगों की ड्रेस पे नजर होगी, अरे अच्छा ये मैडम इस तरीके का पहनी थी ना, ओके मैं इस तरीके का बनाती यस सर, होता है ऐसा। हूँ। यस, अगर आप ये कर पा रहे हैं, आप देखेंगे कि अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको कोई ऐसा आके नहीं बोलने वाला है कि बेटा तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इसके इंतजार में मत रहिए, किसी के पास टाइम नहीं है जो आके आपको इस तरह की बात करे। आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद बनना पड़ेगा, और अपनी अच्छी चीजों को खुद याद करके अपने आप की तारीफ करनी पड़ेगी। और वो तारीफ जैसे करोगे, अपने आप रियलाइज करोगे कि यस आई कैन डू बेटर। आपको लगेगा ये तो मैं और अच्छे से बना सकती हूँ, ये तो मैं और अच्छे से कर सकती यस सर, हूँ। थैंक ऑल यू द सर। वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? यस सर, रिमझिम। सर जैसे बताइए। कभी कभी लगता है कि हमने तो सोच लिया कि हमें एक इस लेवल तक पहुंचना है, तो क्या हमें अगर वो अचीव हो जाता है, लाइक हम सेटिस्फाइड भी हैं सब चीजें, तो हमें वहां रुक जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, लाइक और करना चाहिए? राइट, क्योंकि हमने तो वो सक्सेस, चीज सोची, सॉरी, राइट राइट, टेल मी प्लीज। हमने तो वो चीज सोची हुई थी और हमने वो अचीव भी कर लिया, तो क्या हमें रुक जाना चाहिए या फिर? आपका आपका दिल क्या बोलता है रिमझिम, रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? नहीं सर, ये क्वेश्चन ही था कि लाइक जैसे अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीज करनी है, मैं वहां तक पहुंच भी गई और मैं अच्छा कर रही हूँ, मैंने जितना सोचा था मैं राइट, उतना कर रही हूँ, तो वेरी उसके गुड। बाद। अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन कि थैंक यू सर। मैंने लाइफ में टारगेट सेट किया था, उस टारगेट में मैं पहुंच गया। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं विश्राम ले लूं कि अरे यार मैं सोचा था मिल गया, अब क्या करना है, छोड़ो, अब तो मैं उस लेवल पे पहुंच गया। ये जो चीजें थी ना, ये पुराने जमाने में इसलिए चलती थी क्योंकि कंपटीशन नहीं हुआ करता था। यस सर।
बहुत बहुत ज्यादा लोग नहीं हुए कि होते थे, कॉम्पिटिशन्स नहीं हुआ करते थे। अभी अगर आपको मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश रखना है ना, तो हर दिन आपको अपने आप को ही, वो आपने सुना होगा एक अच्छा डायलॉग है सलमान खान का कि मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, अपने आप से है। खुद से। यस सर। ठीक है, कि मेरा खुद, मैंने ये लेवल दे दिया, अब मेरे को इसके बाद का लेवल देना है। तो हमको अगर सक्सेस इज एक्चुअली एंडलेस, सक्सेस के ना अलग अलग पड़ाव होते हैं कि जैसे मेरे को डिप्लोमा करना था, ओके मैंने डिप्लोमा कर लिया, मेरे को डिग्री करना था, मैंने डिग्री कर लिया, ये दिस इज वन लेवल ऑफ सक्सेस। अब क्या डिग्री ले लिया, इज दिस द एंड ऑफ लाइफ? नो। नो, फ्रॉम हियर देयर विल बी अनदर जर्नी। नहीं, अब मेरे को जॉब करना है, तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब, फिर अब एक मोमेंट पे आपको जॉब भी मिल जाएगा, तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ सक्सेस। यस फिर सर। उस मोमेंट में एक नया थॉट आएगा कि नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, आप खुद का बुटीक डाल लेते हैं अपन, राइट? और आप देखोगे कि आफ्टर 1 और 2 ईयर आपने अपना बुटीक डाल लिया, तो दिस इज अनदर लेवल। फिर आपको रियलाइज होगा कि चलो यार अब अपना मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज अनदर लेवल ऑफ सक्सेस। फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे 100 क्लाइंट है, अब मेरे को 500 क्लाइंट चाहिए, तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड, होना ये चाहिए रिमझिम कि जब आप लाइफ में किसी एक पड़ाव पर पहुंच जाते हो, यस सर। उस पड़ाव में पहुंचने के पहले ही आपके लाइफ में एक नया गोल क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके। वो नेक्स्ट लेवल का गोल एक क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, आई अचीव, जैसे एक बच्चा, कभी आपने गेम खेला होगा, तो गेम के अंदर ना अलग अलग लेवल होते हैं। ये देखा है आपने कि कोई गेम खेला है तो आप लेवल्स देखते होगे, यस सर, राइट? वो कभी क्या खत्म ही क्या नहीं होते, लगता है? लाइक। यस, तो एक बंदा जो है लेवल 1 क्रॉस करता है, उसके बाद वो गेम खेलना बंद कर देता है। नो सर। क्या करता है वो, अंदर से क्या इच्छा होती है? हाँ, कि और खेलें तो और देखें आगे कहाँ पहुंचते हैं। राइट राइट राइट, चलो ट्राई दिस, ओके मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट लेवल। So you try with the level 2, level 3, level 4, level 5, आप आगे बढ़ते हो। So life is also like that only. हमारी जो लाइफ है ना, वो भी ऐसा ही है। सक्सेस का कोई एंड नहीं है। हाँ, सक्सेस के अपने अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग लेवल हैं। वो लेवल आप ही डिसाइड करते हैं और आपको ही फिर उस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। यस तो सर। दैट इज व्हाट, गुड क्वेश्चन, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। इन एवरी सेशन आई गिव द फॉर्मूला, दैट इज माय यूएसपी। ये ट्रेनिंग का मेरा मेन मोटो रहता है कि मैं कुछ एक ट्रिकी आपको फॉर्मूला दूं। तो एक मैंने सबसे पहले बात की विल और स्किल की। ये दो चीज को अगर आप पकड़ लेंगे ना, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने अपने आप को ना एक टेस्टर मारा करो। ऐसे ऐसे एक उंगली लगाया करो अपने दिमाग में और पूछा करो कि कैसे भाई संजीदा, बता तेरा विल पावर है कि नहीं, बता तेरा स्किल कितना है, स्किल इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आपको लगे कि आपका ग्राफ डाउन हो रहा है स्किल में, तुरंत एक वहां प्लानिंग बनना चाहिए कि नहीं यार, मैं इस टीचिंग में ना अभी कुर्ती बनाना सीखी ना, अब एक काम करते हैं मैं पैजामा बनाना सीखूंगी। चलो अब एक काम करते हैं अपन घाघरा बनाना सीखेंगे, अपन एक काम करते हैं ये बनाना सीखेंगे। सो एवरी डे वी हैव टू चैलेंज आवरसेल्फ। हमको हर दिन अपने आप को चैलेंज करना है अगर आप सक्सेस चाहते हो। और वो कैसे होगा? वो किसी और को देख के नहीं होगा, वो खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, खुद को टेस्ट करना पड़ेगा कि वेयर आई एम राइट नाउ, मैं अभी कहाँ हूँ, ओके अब मेरे को नेक्स्ट लेवल कहाँ जाना है। आप जैसे ही ये आइडिया निकालोगे ना, अपने आप आपका विल पावर बनना लगेगा। तो आज का मेरा फॉर्मूला है 3F। 3F को करिए जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं। डू दिस 3F। 3F में से पहला F है फाइंड। नंबर 1, पहले तो ना आज शांति से बैठना थोड़ी देर, और बैठ के ना रिमझिम, सपना, संजीदा, पूनम, नेहा, भावना, जितने लोग हैं, शांति से खाली दिमाग में बैठ के सोचना कि यार मेरा कौन सा वो स्किल है जिसको मेरे को ना 24/7 रात को 4 बजे उठा के भी मेरे को आप बोलो ना ये काम करो तो मैं करने को तैयार हूँ। वो कौन सा स्किल है जिसमें मतलब मेरे को मजा आता है, आई एंजॉय डूइंग दैट थिंग, और मतलब मेरे को बहुत मजा आता है और मैं उसमें बहुत अच्छा हूं भी, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। वो एक स्किल को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैन यू डू दिस? यस सर। कितने लोग शेयर कर सकते हैं ऐसा कोई चीज आपके अंदर है जो 24/7, जिस काम से आप एक वर्ड बीच में आया था कि बहुत मजा आता है सर अगर सक्सेस हो जाएंगे, तो वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि वो कौन सा काम है जिसमें आप 24/7 आप मतलब खूब एंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा और आपको लगता है उस लाइन में मैं थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट क्वालिटी इन यू? आपके अंदर वो क्या खास बात है? जैसे आप मेरे से पूछोगे ना
तो आई एम अ पैशनेट ट्रेनर, मतलब मेरा पैशन है, ट्रेनिंग इज माय पैशन, मतलब ये कभी भी करा लो, आई एम ऑलवेज रेडी एंड आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली। पहले मैंने शौक से स्टार्ट किया, अभी मैं प्रोफेशनली ये काम करता हूँ, लोग इस काम के लिए मेरे को पे करते हैं, आई रियली चार्ज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस। सो नाउ दिस पैशन बिकम प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन बन गया है। ऐसा आपका क्या पैशन है, क्या आपके अंदर वो स्किल है जिसमें आपको मैं 24/7 लगा दूं तो आप उस काम को करना चाहोगे? आई हैव नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। सोचना पड़ रहा है। यस, रिमझिम बहुत ध्यान से सोचने का कोशिश कर रही है। स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संस्कृति लिखती है, डांसिंग नेहा लिखती है, डिजाइनिंग, वेरी गुड। तो अब उस एक सब्जेक्ट में ना देखिए, अभी जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट के सारे असाइनमेंट बिफोर टाइम सबमिट करने होंगे। कितने लोग कमिटेड है? अगर आप ये करते हो ना तो आप अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हो, टीचर्स के बीच में, इंस्टीट्यूट के बीच में, अपने कलीग के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फेलो मेंबर्स के बीच में। अरे यार क्या बात है, ये संस्कृति बड़ी जबरदस्त है यार, ये तो टाइम से पहले कर लेती है। संजीदा मस्त है यार, ये तो एकदम, ये तो नेहा तो मस्त है, ये पूर्णिमा मस्त है, ये तो एकदम, इन लोग मैडम बोलते नहीं है उसके पहले तो इनकी फाइल रेडी रहती। सो पीपल विल टॉक लाइक दिस अबाउट यू। भावना के बारे में बात करेंगे कि नहीं यार, भावना तो अरे बिल्कुल क्या मस्त करती है, इसका ड्राइंग भी अच्छा है, इसका स्केचिंग भी अच्छा है। सो यू विल क्रिएट योर आइडेंटिटी। सो माय डियर फ्रेंड, आज ना थोड़ी देर शांति से बैठ के आप फाइंड करना, आप ढूंढना मेरा स्किल क्या है, मेरा पागलपन क्या है, मेरा 24/7 जो चीज मैं करता हूँ जिसमें मेरे को बहुत मजा आता है वो क्या है, ये ढूंढना है। देखिए क्या अच्छी बात लिखी गई है कि निराशावादी हर अवसर पर कठिनाइयों को देखता है, जबकि आशावादी मुश्किलों में मौके तलाशता है। जब आप अपने स्किल को पहचान जाओगे ना, आप मुश्किल में भी रहोगे ना तो उसमें भी मौके ढूंढोगे। मतलब आप रास्ते में भी चल रहे हो ना, तो आप अच्छे डिजाइनर हो तो आपका ध्यान सारे लोगों के ड्रेस में चल रहा है और वहीं पर ही ना दिमाग में आपको चल रहा है कि आप अगर डिजाइन करोगे तो कैसे डिजाइन करोगे। आप मार्केट में भी घूम रहे हो तो ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में। आप इस लेवल के एक्सपर्टाइज में पहुंच जाएंगे। इसलिए पहला काम है फाइंड योर स्किल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप अपने स्किल को ढूंढो, कौन से काम में आपको मजा आता है। दूसरा चीज है, अब उस पर फोकस मारो क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, हाँ या ना। विराट कोहली अगर विराट कोहली बना तो किस चीज में बना हो? कैन यू प्लीज टेल मी। मैं अगर 2-4 नाम लिखूं और मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी किस स्किल से बनाई, कैन यू प्लीज टेल मी। अमिताभ बच्चन, इसकी आइडेंटिटी किस नाम से जाने जाते हैं? इनकी आइडेंटिटी किस में? एक्टिंग। यस नेहा, तो इन्होंने फाइंड किया, क्या पता लगाया कि भाई मेरे को एक्टिंग पसंद है, फिर इन्होंने क्या किया, उस एक्टिंग में फोकस करना चालू किया, बिकम अ सक्सेसफुल। ठीक है। वैसे ही मैं अगर बोलूं धोनी, ओके, क्रिकेट प्रिया, एब्सोल्युटली यस। तो क्रिकेट क्या था? उनका स्किल था, उन्होंने पता लगाया। तो पता जब लगाया कि क्रिकेट में मैं सक्सेस हो सकता हूं, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट को पकड़ा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सुबह से रात तक क्रिकेट 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 क्रिकेट। उन्होंने फाइंड किया और फाइंड करके फोकस किया, माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड? ठीक है, फोकस किया। और ना मैं आपको नाम देता हूं, नेहा कक्कड़, सुने आप? ओके, यस यस। प्रिया ने रिप्लाई किया सिंगिंग सिंगिंग, एवरीवन, लगता है सारे लोग नेहा कक्कड़ के फैन है। फटाफट एकदम सिंगिंग 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 आ रहा है, ग्रेट। सो व्हाट इज योर नाउ क्वेश्चंस टू यू। अब मैं आपको बोलता हूं, यू व्हाट इज योर आइडेंटिटी, माय डियर फ्रेंड। इतने लोगों को तो आपने बता दिया। अब मैं बोलूं पूर्णिमा का नाम अगर जाता है, जैसे इतने लोगों का नाम मैंने डाला, पूर्णिमा का नाम मैं डालता हूं, तो क्या वो अभी, ठीक है नेहा तो बोल दी कि फैशन डिजाइनर है, ठीक है, आपकी फ्रेंड होगी कॉलेज में तो आप जानते होगे तो आपने बता दिया, लेकिन पब्लिकली अगर मैं पूर्णिमा लिखता हूं तो क्या पूर्णिमा की आइडेंटिटी है? यस। तो व्हाट, माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई मीन टू से इज, एक चीज को पकड़ो, एक चीज को ढूंढो, दैट इज व्हाट फाइंड। और उस फाइंड में पागलपन की तरह डूब जाओ, दैट इज व्हाट फोकस।
getting what I just wanted to tell. If you want to be successful, एक चीज को पकड़ो. अगर आप फैशन डिजाइनर पढ़ रहे हो ना, तो पूरी तरह साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने साल आप DSI FE में, चाहे आप फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनिंग जो भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें डूब जाओ. मतलब आपको सिर्फ फैशन 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 दिखना चाहिए. आपका फोकस सिर्फ फैशन 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 होना चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है तो. इसीलिए बोला गया कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं. जो मैं बात किया था ना कि 100 लोग आपके किसी चीज को नहीं पसंद कर रहे हैं, 4 लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो 4 लोग पसंद कर रहे हैं उस पे ध्यान दो, तो आपको सुकून आएगा, आप उस लाइन में आगे बढ़ पाओगे. 40 के बारे में सोचोगे या 100 के बारे में सोचोगे जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप वहीं अटक जाओगे माय डियर फ्रेंड. तो पहला लेटर मैंने आपको दिया फाइंड, दूसरा लेटर दिया मैंने फोकस, और तीसरा लेटर मैं देता हूं आपको कि फोकस करके उस चीज को फुलफिल करो. दिखाओ दुनिया को कि हाँ आपने ये काम को कर लिया और आपने अचीव कर लिया. जैसे मैंने नेहा कक्कड़ का नाम डाला, आपने लिखा सिंगर, मतलब क्या, उसने फुलफिल कर लिया. उसने फुलफिल कर लिया ना, उसकी आइडेंटिटी आपने बनाई ना. सचिन की, धोनी की आइडेंटिटी आपने बनाई ना. हालांकि उन्होंने मेहनत किया, लेकिन आज वो इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज है अपने काम के कारण से. इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप भी फुलफिल करिए एक अच्छे फैशन डिजाइनर. सिर्फ इंदौर के नहीं, सिर्फ बॉम्बे के नहीं, सिर्फ रायपुर के नहीं. अपना थॉट प्रोसेस ऐसा रखो कि इंडिया लेवल के बेस्ट डिजाइनर में अगर मेरा नाम आए तो मेरा नाम आना चाहिए. अगर इंडिया लेवल पे फैशन डिजाइनर का कोई कंपटीशन रखे ना, तो नेहा आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को ही जीतना है. ठीक है, वो लेवल पे जब आप तैयारी करोगे ना, वो लेवल पे जब आप सोचोगे, आप देखोगे. ओके, मानसी बोलती है पीपल नो माय नेम. यस मानसी, किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज योर स्किल? मानसी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? आपने लिखा मानसी जोशी, पीपल नो मी बाय द नेम, शुड नो बाय माय नेम. ओके, बाय अवर नेम. ओके, ग्रेट. राइट. मतलब अभी ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ करे कि पीपल शुड नो बाय योर नेम, और ऐसा कुछ हो जाए कि फिर मानसी खुद बोल सके कि हाँ मेरे को लोग मेरे नाम से जानते हैं. दैट्स ग्रेट. तो उसके लिए जो काम आपने पकड़ा है ना, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. गेटिंग द आइडिया कि सिर्फ काम चालू नहीं करना है. एक बहुत अच्छा मैं कल कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आप कोई काम चालू करते हो ना, उस काम को पूरा जब आप करते हो तब आपकी पहचान बनती है. एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ. एक बार ना संत महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे. संत महात्मा थे, रास्ते से गुजर रहे थे, शाम का समय था, और लगभग खूब आंधी तूफान ऐसी चीजें चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बारिश बस होने वाला है. तो महात्मा को जाना तो बहुत आगे था, लेकिन अब जैसे माहौल बदला, मौसम बदला, बारिश होने जैसा लगा, तो उनके मन में विचार आया कि यार इतना लंबा तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं रुकता हूँ. ऐसा विचार चल रहा था, और वो तेजी से अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे जा रहे थे. और जैसे ही आगे जा रहे थे ना, एक उनको गांव जैसा दिखता है, और गांव के पास एक उनको घर दिखता है. तो वो घर के दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचते ना, तेज बारिश चालू हो जाती है. अब महात्मा के पास कोई चारा ही नहीं है, अब वो आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि अंधेरा भी हो गया, बारिश भी हो रही है. तो वो दरवाजा खटखटाते हैं. तो आपको पता है, दरवाजा जब वो खटखटाते हैं तो घर से ना हस्बैंड वाइफ निकलते हैं. और जब वो हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, तो महात्मा को देख के वो बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और महात्मा को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि महात्मा बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं. तो महात्मा अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे को जाना बहुत आगे था, लेकिन अभी जो है ना अंधेरा हो गया, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को क्या रात में रात्रि विश्राम आपके यहाँ करने का मौका मिल सकता है? क्या बोलते हैं महात्मा, क्या बोलते हैं? रात्रि विश्राम, रात्रि विश्राम. जी, रात को मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो पति पत्नी बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं महात्मा आइए, बिल्कुल रात को रुकिए. अब होता क्या है, जब नया कोई बंदा घर में आता है तो बातचीत चालू होती है. तो महात्मा जो है वो उनसे पूछते हैं, पति महाराज से, कि भाई पति देव आप करते क्या हो? तो पति देव जवाब देते हैं कि महात्मा गाय है, दूध देती है और गुजारा चलता है. बोले ठीक. तो वो उनके धर्म पत्नी से पूछते हैं कि धर्म पत्नी कुछ करती होगी. तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो? तो बोले महात्मा गाय है, दूध देती है और गुजारा चलता है. बोले ठीक. महात्मा को लगा यार ये इतने में कैसे काम चलता है, कुछ तो और करते होंगे ना. तो वापस वो पति देव से फिर पूछते हैं कि श्रीमान इसके अलावा और कुछ करते हो?
तो जवाब आता है महात्मा कुछ नहीं, गाय है, दूध देती है और गुजारा चलता है। ओके, तो उनको लगा धर्मपत्नी कुछ और करती होंगी, क्योंकि आजकल लेडीज तो बहुत आगे बढ़ गई हैं, कितनी सारी चीजें हो गई, उनके लिए बहुत सारा स्किल आ गया। तो फिर वो पूछते हैं धर्मपत्नी से, आप तो कुछ करती ही होंगी ना श्रीमती जी? तो वो वापस रिप्लाई करती है कि महात्मा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गाय है, दूध देती है, गुजारा चलता है। अब महात्मा को तो रात काटना था, महात्मा ने रात काट लिया, सुबह उठे और महात्मा क्या किए, उनकी गाय को लेकर रवाना हो गए। अब ये दोनों पति पत्नी उठते हैं, अब ये देखते हैं अब गाय है क्या? नहीं है। अब गाय दूध देने वाली है क्या? जब गाय नहीं है तो दूध कहाँ देगी, और दूध नहीं देगी तो गुजारा कहाँ से चलेगा? तो दोनों पति पत्नी उठते हैं और गाय देखते हैं, गाय नहीं है, महात्मा देखते हैं, महात्मा नहीं है। इनका दिमाग बड़ा खराब होता है, ये बड़े भड़के हुए रहते हैं, महात्मा को खूब गाली देते हैं, अरे कैसे कैसे लोग आते हैं, हमने इनको घर में जगह दी, ये हमारी गाय चुरा के चले गए, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब 2 दिन तक के खाना पीना बंद हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं कि अब लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो अचानक जो है ना, वो पति महोदय को याद आता है कि उनके जो पूर्वज थे, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको बहुत बड़ी जमीन देके गए थे जहां वो खेती कर सकता था। ठीक है, लेकिन भाई साहब को खेती करना आता नहीं, क्योंकि इसने कभी सीखा नहीं। ये तो एक ही चीज जानता था, गाय है, दूध देती है और गुजारा चलता है। इनको तो यही आता, राइट? तो ये आदमी ना सक्सेस नहीं हो पाया लाइफ, राइट? अब जब महात्मा गए ना, इसको एहसास हुआ कि अरे नहीं यार, मेरे को तो अब खेत में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कनेक्ट करो कि उस आदमी के पास क्या नहीं था, विल पावर नहीं था। यस और नो? वो लाइफ Yes, में sir, और सक्सेस नहीं हो पा रहा। हाँ जी, हाँ, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमें आगे कुछ और भी करना है या नहीं। राइट, मतलब विल पावर ही नहीं था। जो आपने बोला ना कि मैं सक्सेस के एक पड़ाव में पहुंच गई, अब मैं आगे कुछ करूं कि नहीं करूं, वो स्थिति में थे। वो तो सोच रहे थे गाय है, दूध देती है, गुजारा चलता है, करना क्या है। तो वो छोटी मोटी जिंदगी में चल रहे थे, हम गुजारा जैसे चला रहे हैं रिमझिम। ठीक है, मैडम ने असाइनमेंट दिया, बन गया तो ठीक है, नहीं भी बना तो क्या है, राइट? तो हाँ, मतलब एक बात बता रहा हूं मैं। तो द थिंग इज एक बहुत अच्छा लिखा है मानसी ने कि ही वॉज डिपेंडेंट ऑन काउ, द रीजन बिहाइंड विल पावर वॉज मिसिंग। आदमी सक्सेस क्यों नहीं होता है मालूम है? विल पावर ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। विल पावर मिसिंग था, विल पावर मिसिंग होने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ा। अब उसको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे को तो लाइफ में आगे बढ़ना है, अब तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ, खेती करता हूँ। वो खेती सीखा, जैसे ही विल पावर आया, स्किल क्या हुआ, स्किल डेवलप हो गया। और स्किल डेवलप होने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना अच्छा खेती किया कि उनका जो कच्चा घर था वो पक्का घर बन गया, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई, लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस में पहुंच गया। और इसी बीच में ना महात्मा एक बार उनके घर में पहुंचते हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो महात्मा को गाली दे रहे थे, ये दोनों महात्मा के पैर में गिर जाते हैं, आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाता है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस अगर महात्मा के उन्होंने जो प्यार, आदर, सत्कार के भाव थे, क्यों? यस सर, क्यों? यस, क्योंकि Can you अगर वो गाय लेकर नहीं जाते तो उनका स्किल ही उन्हें नजर नहीं आता कभी सर। क्या बात हाँ, है, मतलब थैंक यू उनके सो पास वो चीज अपना थी, स्किल लेकिन उन्होंने बाहर कभी आया देखने की उनका, जरूरत ही वो नहीं देख नहीं समझी। पाए। राइट, राइट। मानसी सिंह दे रियलाइज देयर मिस्टेक। तो एक्चुअली उस महात्मा ने उस विल पावर को फायर कर दिया उस आदमी के अंदर कि बेटा इतने में लाइफ नहीं चलेगा, तेरे को और कुछ करना पड़ेगा। तो आपके जो टीचर है ना, जो डीएसआई एफडी में डेली आपको क्लास में प्रेशर बनाते हैं, जो आपको बार बार बोलते हैं कि ये असाइनमेंट करो, ये बनाओ, ये लेके आओ, ये करके आओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्या लगता है ये क्या कर रहे हैं? आपको टॉर्चर कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? लगता तो है सर, पर अब नहीं लगता कि आपकी बात हाँ, सुनने के बाद अब नहीं लगता कि हाँ वो जो है ना, वो नहीं भी है स्किल्स, वो भी वो बाहर निकाल रहे हैं। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज की बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पे ना इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट मेरे पास आए, उनका एग्जाम का टाइम टेबल हमने बना दिया है। उनको एक असाइनमेंट सबमिट करना था, उन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। तो आज पूरे ग्रुप बना के डायरेक्टर चैम्बर में मेरे पास आए, और सारे लोग ये सोच के आए थे कि सर से कैसे भी फोर्सफुली हम डेडलाइन को आगे बढ़ा देंगे, एग्जाम की डेट को आगे बढ़ा देंगे।
आज सेशन जब उनके साथ हुआ, मैंने फाइनली बोला कि भाई आपको 3 बार डेडलाइन मिल चुका है, उसके बाद भी आपने फाइल सबमिट नहीं की है। अब एग्जाम डेट तो आगे नहीं बढ़ने वाला, और यही मौका है जहां आप अपने स्किल को निखारोगे, क्योंकि जब तकलीफ का समय होता है ना, तो ही आदमी के अंदर ज्यादा निखार आता है। चैलेंजेस में आदमी ज्यादा सक्सेस को अचीव करता है। तो अगर आपके टीचर, अगर आपके मेंटर आपको कोई चीज के लिए प्रेशर बना रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, टेक इट वेरी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लीजिए। वो महात्मा ने गाय भले चोरी की, लेकिन उसका इंटेंशन बड़ा पॉजिटिव था कि भाई गुजारा बस मत चला, गाय है, दूध देती है और गुजारा चलता है, इतने में जिंदगी को मत खराब कर, कुछ कर, लाइफ में आगे बढ़। तो आप देखेंगे ये करने के बाद जैसे ही महात्मा ने उनकी गाय चुराई, वो जो बंदा है वो फाइंड कर पाया। आप देखेंगे वापस अपने इन 3 फॉर्मूला से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि उसने फाइंड किया कि भाई मेरे पास तो जगह है, राइट, उसने फाइंड किया। फिर उसने क्या किया, फोकस किया कि नहीं मेरे को इस जगह में खेती करना है, फोकस। और फाइनली फिर क्या हुआ, उसकी लाइफ क्या हो गई, फोकस करने से क्या हो गई, उसकी लाइफ क्या हो गई, फुलफिलमेंट। तो सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाना। जाग जाओ भाई, आपके अगर टीचर बोल रहे हैं कि ये बना लो, तो जाग जाओ। अभी नहीं बनाओगे कब बनाओगे, अभी नहीं सीखोगे कब सीखोगे। आपको बोला जा रहा है कि ये क्लास अटेंड करना जरूरी है, जाग जाओ। आपको ये सेमिनार में जाना जरूरी है, जाग जाओ। This is very important, my dear friend. So let me finish and conclude the session. We are almost in the end. तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी। हाँ, ये आपके लिए रिमझिम। एक गोल मिल जाए नदी। आपको एक गोल मिल गया ना, तो मिल जाए नदी, तो समंदर की तलाश करो। यस सर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसे भी शीशे हैं जिनसे आप पत्थर को तोड़ सकते हो, यस सर। राइट। तो वो भी है, ये ढूंढना हमको पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो आज का ये छोटा सा सेशन था जो DSI FD ने अरेंज किया, सक्सेस एंड फेलियर। एंड माय सेशन ऑलवेज कंक्लूड विद अ एक्शन प्लान। तृप्ति मैडम, मैं आपको ये शेयर करूंगा, आप चाहो तो स्टूडेंट को भेज सकते हैं। आज का एक्शन प्लान है, आस्क फ्रॉम सेल्फ, फाइंड व्हाट इज योर विल एंड स्किल। कैन यू फाइंड क्या फाइंड कर पाएंगे? यस सर। फोकस एंड इंप्रूव योर विल एंड स्किल। पूरा ध्यान अपने स्किल के डेवलपमेंट में लगा दीजिए, और आप देखोगे कि इसको फुलफिल करने से आप जो सक्सेस है उसको आप अचीव कर पाओगे। और इसके लिए आज हमने फॉर्मूला किया 3F, दैट इज फाइंड, फोकस एंड फुलफिल। सो लेट मी फिनिश दिस सेशन विद वन मोर कोट कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। थैंक यू सर।